नमस्कार, मैं हूं एकता सोडी और आजकल देख रहे सारे व्यूअर्स का आजकल के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय मानक ब्यूरो चंडीगढ़ ने स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सभी लोगों को तहे दिल से शुभकामनाएं दी और ध्वजारोहण करके इस दिवस को मनाया। इस मौके पर उन्होंने अपना एक गीत भी लॉन्च किया। श्री राजीव पी उप महानिदेशक भारतीय मानक ब्यूरो चंडीगढ़ ने स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर सभी मौजूद लोगों को तहे दिल से इस दिन की शुभकामनाएं दी और ध्वजारोहण किया। बीआईएस ने राष्ट्रीय ध्वज के लिए IS 1 प्रकाशित किया है। चंडीगढ़ शाखा कार्यालय भारतीय मानक ब्यूरो ने मानक गीत का विमोचन किया। Freedom struggle, at least that history everybody should be knowing it. How we fought for independence, how we were slaves of other people earlier. Our forefathers, our grandparents, how they have fought and won the freedom for us. That's very important to everybody. We should all learn history first and then we should learn science. That's what my advice is. इस मौके पर BIS की ऑनलाइन सेवाओं और प्रयोगशाला सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। हमारा जो स्टैंडर्ड क्लब से अपेक्षाएं हैं उसमें एक पार्ट ये भी है कि हम बच्चों से ये उम्मीद रखें कि देश में जो विजन है सरकार का कि स्वच्छ रहना है, स्वच्छ भारत का, और देश में जितना कंट्रीब्यूशन आप दे सकते हैं वो करें। उसके साथ हम लोग साथ खड़े हैं। भारतीय मानक ब्यूरो सेक्टर 33D चंडीगढ़ के 50 छात्रों और 5 शिक्षकों के VIP कार्यालय में एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई दिल से हैं सब भाई भाई। तिरंगा सबका एक है, इरादे सबके नेक हैं। भारत माता की रक्षा में प्रण यही करेंगे, या तो झंडा लहराएंगे या झंडा से लिपट कर आएंगे। हिंद के बहादुरों, नेहरू जी के लाडलो, हिंद के बहादुरों, नेहरू जी के लाडलो, थाम लो संभाल कर देश की मशाल को, थाम लो संभाल कर देश की मशाल को। हिंद के बहादुरों, नेहरू जी के लाडलो, हिंद के बहादुरों, नेहरू जी के लाडलो। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांतों को अपनाते हुए चंडीगढ़ स्थित 3BRD ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इंडियन एयरफोर्स के चंडीगढ़ स्थित 3BRD ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत विषयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। Undeterred, unfettered, relentless, 90 years on. Today, an Atmanirbhar and Saksham Indian Air Force is transforming for the future. But the road has been a long and testing one. The skill and professionalism of our air warriors found wide acclaim in the country as well as on foreign land. Their acumen in the air found a match in their performance in other arenas as well.
on the occasion of the 90th anniversary of the Indian Air Force, I extend my warm greetings to all Air Warriors, NCC, DSC personnel, civilian staff and their family members. Over the years, the Indian Air Force has grown from being a small tactical air force to one that can now hold its own against any imminent threat. It is natural for one to see this long voyage through the prism of equipment, especially aircraft. But for me, this journey has been characterized most by the toil, ingenuity and sagacity of our predecessors, who had the ability to think beyond the resources available to them. Each incremental change made over the years by our veterans has permitted us to stand on the pedestal that is rightfully ours today. My special greetings to all our esteemed veterans and their families. It is also befitting that I, on behalf of all the men and women in blue, pay homage to the air warriors who have made the supreme sacrifice in defense of our country. As the battlefield of tomorrow transforms and becomes more technology driven, we too are innovating to stay ahead of the curve. I would like to assure the citizens of India that the Indian Air Force is ready to take on the future and we will continue to touch the sky with glory. Happy landings and Jai Hind. इस दौरान 3BRD के AOC राजीव श्रीवास्तव ने बताया कि भारत ने परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों के पुर्जों के स्वदेशीकरण में तेजी से प्रगति की। उन्होंने कहा कि डिपो के स्वदेशीकरण अभियान की बदौलत करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है, साथ ही विदेश पर निर्भरता में भी कमी आई। इसी मौके उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के तहत जो प्रण लिया गया है उसे डिफेंस प्रोडक्शन और BRD अकेले मिलकर पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए पूरे देश की विभिन्न संस्थाओं की जरूरत पड़ेगी। कंट्री की जब से ये आत्मनिर्भर भारत हम लोगों ने प्रण लिया है कि हम बिल्कुल हर चीज़ को हम अपनी कंट्री में ही बनाएंगे, उसके लिए हमारा 3BRD पूरा का पूरा जोश से आगे बढ़ रहा है। हमने ये टेक्नोलॉजी खुद बना ली अपने एक्सपीरियंस से 3BRD ने, और हम ये जहाज़ का ओवरऑल खुद कर रहे हैं और उसको लाइफ दे रहे हैं। तो उससे क्या हुआ, हमने अपने देश में ही रखा एसेट, हमने अपने देश में ही इसका ओवरऑल किया और वो पैसा बचा लिया जो कि उस देश में जाना था। स्पेयर्स जो है जो वहाँ से आने चाहिए थे, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं जैसे जितना मैक्सिमम हो सके हमारे प्राइवेट पार्टनर्स, डिफेंस प्रोडक्शन पार्टनर्स, एकेडमिया, इन सबको लेके वो स्पेयर्स बना के और हम यूज़ करें जिससे हमें बाहर से ना लेना पड़े। लेकिन इतनी जल्दी ये नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। कई चीज़ों की टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी नहीं है। टेक्नोलॉजी इतनी आसानी से नहीं देता, कोई आपसे शेयर नहीं करता, उसको आपको खुद रिसर्च और डेवलपमेंट करके बनाना पड़ता है जिससे आप किसी और देश पर निर्भर ना रहे। तो उसके लिए बहुत काम हुआ है और इंडिजिनाइज 3BRD कर रहा है। और जितनी भी जैसे DMRL हो गया और भी जो लैब्स हैं, डिफेंस रिलेटेड लैब्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, अभी तो हमने ये कर दिया है कि जितने भी देखिए ये जो एम है, आप अकेले में डिफेंस प्रोडक्शन और BRDs मिलके नहीं कर सकती, इसमें पूरे नेशन का एफर्ट लगेगा। दूसरा, बहुत सारे इंडिजिनाइजेशन स्पेयर्स जो हैं वो हमने फास्ट ट्रैक किए हैं और ये आत्मनिर्भर भारत में ये हमारा दृढ़ संकल्प है कि अगले 3 से 5 साल में हमें बिल्कुल मुक्त होना है। सारा का सारा हम यही बनाएंगे, अब बाहर से हमें कुछ नहीं चाहिए। तो उसकी तरफ हमने अपना कदम बढ़ा लिया। We face a number of obstacles in terms of whether it could be technology, whether it could be a solution, technological solution that we require, whether it could be route to certification, because there are a number of components, जैसे bearings होते हैं अपने normal ball bearings हम जो normal इस्तेमाल करते हैं, जो जहाज में होते हैं उसका certification is a very very stringent process। और CEMILAC जो है, that is the Airworthiness Certification Agency, उनको अगर कन्विंस करना है और उनको प्रोसीजर समझाना है तो हम इसके लिए एकेडमिया का हेल्प ले रहे हैं, बिकॉज दे आर मोर एक्सपर्ट्स, दे आर थियोरेटिकली मोर नॉलेजेबल। So we are approaching them so that they can give us a route to certification in terms of say bearings. This is an example.
सेकेंडली हम IIT मंडी के साथ वी आर इनटू इंडस्ट्री 4.0। जैसे मैंने मेंशन किया कि हमारी इंडस्ट्रियल फैसिलिटी है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेयर्स बनते हैं, वहाँ पे वी वांट टू एस्टैब्लिश और वी वांट टू इंस्टॉल इंडस्ट्री 4.0 व्हिच इज ऑब्वियसली द इन थिंग राइट नाउ आउटसाइड। इट इज slowly creeping into Indian Air Force and we are going a big way. So IIT Mandi is helping us in that also. There are a number of other projects which IIT Mandi, we have approached them and they have given us solutions. So that process is already on. चंडीगढ़ स्थित हरियाणा राजभवन में हरियाली तीज के उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने लोगों को शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश के लोगों की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा राजभवन में हरियाली तीज के अवसर पर उत्सव का आयोजन किया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाली तीज पर्व के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश के लोगों के लिए खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। माही दे चलियो पटियाले उठों लियावी ओए उठों लियावी रेशमी नाले अद्धे चिट्टे ही ओए अद्धे चिट्टे ते अद्धे काले वे एक पल बह जाना एक पल बह जाना मेरे कोल तेरे मिठड़े नी ओए तेरे मिठड़े ने लग दे बोलिया पपिया दर्दी रात में बोलिया पपिया दर्दी रात में वो तो पियो पियो शोर मचावे मेरी लड़की बोलिया पपिया दर्दी रात में बोलिया पपिया दर्दी रात में पियो पियो शोर मचावे मेरी लड़की बोलिया पपिया दर्दी रात में बोलिया पपिया दर्दी रात में। चंडीगढ़ नगर निगम ने शिवालिक गार्डन में तीज के उत्सव पर 2 दिवसीय तीज महोत्सव का आयोजन किया। इस मौके पर मेयर अनूप गुप्ता और कमिश्नर आनंदिता मित्रा ने इस मेले का शुभारंभ किया।
चंडीगढ़ नगर निगम की तरफ से 2 दिवसीय तीज महोत्सव का शिवालिक गार्डन में आगाज किया गया। मेयर अनूप गुप्ता और कमिश्नर आनंदिता मित्रा ने यहां तीज मेले का शुभारंभ किया। मेरी माटी मेरा देश थीम पर समर्पित मेले में विभिन्न राज्यों के कलाकारों ने पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी लोक नाच, गीत और भंगड़ा आदि पेश किए। कार्यक्रम में पुराने कल्चर से जुड़ी झांकियां और स्टॉल्स लगाई गई, जिसमें मिट्टी के घड़े बनाना, मक्खन निकालना और चूल्हे पर खाना पकाने जैसे चित्रण किए गए। एक दिन जरूर होगी जीत भी, एक दिन जरूर होगी जीत भी।
कमिश्नर आनंदिता मित्रा ने कहा कि इस बार तीज पर कुछ अनोखा देखने को मिल रहा है, जैसे कि काफी पुरानी चीजों को यहाँ रखा गया है जिसे लोग देख सकें। ये सारा आयोजन जो किया गया है ये दो मकसद से किया गया है। एक तो है कि तीज जो है हमारे कल्चर से इतना जुड़ा हुआ है, तीज सारे औरतों के लिए, सारे औरतों के द्वारा मनाया जाता है, तो उनकी खुशी के लिए ये सारा कार्यक्रम आयोजन किया गया। आप चारों तरफ देख रहे होंगे कि कितने लोग आ रहे हैं आसपास के एरिया से यहाँ के कार्यक्रम का आनंद उठाने के लिए। स्टेज पे कार्यक्रम है, स्टॉल्स लगे हुए हैं, जो पुराने जमाने की चीजें जो आज कहीं लुप्त हो गई है उनके स्टॉल लगाए गए हैं। ग्रामोफोन है, कुल्हड़ वाली चाय है जिसमें शक्कर डाल के बनाया जा रहा है, चरखा है, वो सारा कुछ आज यहाँ इकट्ठा किया गया है। साथ में इस बार का जो तीज का फंक्शन है, हम मेरी मिट्टी मेरा देश इस थीम के ऊपर बना रहे हैं, क्योंकि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे अभी हुआ है और हम अपने वीरों को जिन्होंने शहीदी दी है उनकी वंदन करते हैं, उनको हम नमन करते हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी पिंजौर यादविंद्रा गार्डन ने महिलाओं के लिए तीज महोत्सव का आयोजन किया। इस मौके पर पूर्व विधायिका ने भी लिया हिस्सा। हर वर्ष की तरह इस बार भी पूर्व विधायिका लतिका शर्मा द्वारा पिंजौर यादविंद्रा गार्डन में महिलाओं के लिए तीज उत्सव का आयोजन किया गया। गार्डन में तीज उत्सव हरियाणा सांस्कृतिक अंदाज में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने मेहंदी भी लगवाई और सांस्कृतिक कार्यक्रम में महिलाओं ने गानों पर पूर्व विधायिका लतिका शर्मा के साथ डांस भी किया। इसी दौरान हरियाणा एमएलए हॉस्टल में भी महिलाओं ने लोकगीत गाते हुए झूलों का आनंद लेते हुए तीज का उत्सव मनाया। हरियाणा विधानसभा सचिवालय की ओर से महिला स्टाफ के लिए तीज उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान विधानसभा स्टाफ की महिलाओं ने लोकगीत गाते हुए झूलों का आनंद लिया। गौरतलब है कि इस प्रकार का उत्सव विधानसभा में तीसरी बार मनाया गया है, जिसमें हर उम्र की महिलाओं ने जमकर आनंद लिया। विधानसभा अध्यक्ष की प्रेरणा और प्रयास से ये कार्यक्रम संपन्न हो सका है। आजकल में आज इतना ही। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर होगी अगले हफ्ते मुलाकात। नमस्कार।